Hello, everyone. Today we are going to continue with the revision of lesson number 4, air pressure. Okay. In last lecture, we have discussed about the pressure belt, how the pressure belt exists on the earth. What are the reasons for happening for existence of the pressure belt on the earth surface? Again, we have discussed about the equatorial low pressure belt, then mid latitudinal high pressure belts. Okay, today we are going to continue with the subpolar low pressure belt. Okay, so let us start. Due to Earth's curvature, आपको पता है Earth का shape कैसा है? Spherical. At the equator, you will see the length is higher, and as you move towards the pole, इसका जो shape है वो देखो ये कम होता जा रहा है, देखो है ना? So due to the Earth's curvature, the area between two parallels get reduced. अभी अगर हम बात करेंगे parallels की, तो ये देखो, ये क्या है? इक्वेटर है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ then Arctic circle, then South Pole, North Pole, then Antarctic circle. First is the Tropic of Capricorn, Antarctic circle, and the South Pole. अगर हम ये देखेंगे तो ये देखो इक्वेटर, ये जो इसके लेंथ है वो ज्यादा है. तो अगर हम ये पैरेलल्स को कंपैरिजन करेंगे तो इसके लेंथ जो है पोल तक के जाते डिक्रीज हो जाती है. ओके, so due to the Earth's curvature, the area between the two parallels get reduced as we move towards the pole. जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे एरिया जो है between the two parallels ये डिक्रीज होते जाता है, as you can see in the figure. So this result in the lesser friction of the air with the Earth surface. इसके वजह से जो है एयर का अर्थ के साथ जो कांटेक्ट है वो लेस आता है, तो फ्रिक्शन क्या होता है? ओके, वो रिड्यूस हो जाता है. So air in this region is thrown out because of this reduced friction and also because of the earth rotational motion. तो ये फ्रिक्शन रिड्यूस होने की वजह से, और आपको पता है अर्थ जो है वो खुद के अलोंग रोटेट भी होती है, just because of the rotational motion and the reduced friction. Okay, the air in this region is thrown out. यहाँ की जो हवा है ये फेंकने लगती है बाहर, ठीक है, and this leads to development of the low pressure belt here. That is called as the subpolar low pressure belt. तो ये कहाँ पे पाया जाता है? This region, this condition is observed in the area between 55 degree to 65 degree. You can see 55 degree to 65 degree, 55 degree to 65. Get it? See, in both the hemisphere, whatever it is the northern hemisphere, this is the northern hemisphere, okay, and this is the southern hemisphere. So in case of both of the hemisphere between the 55 degree to 65 degree, you will find this region, that is the subpolar low pressure belt. Okay, now next one is the polar high pressure belt, the last pressure belt. Okay, that is what? Polar high pressure belt. Okay, now we will talk about the polar high pressure belt. In both the polar regions, okay, the temperature is below 0 degree Celsius. आपको पता है ये जो सनरेज है, ठीक है, ठीक है, सपोज तो इससे जो रेज निकलती है वो कैसे होती है? स्लैंटिंग, ठीक है. इसके वजह से यहाँ पे जो सनरेज है वो बहुत कम पहुंचती है और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कोल्ड है, दैट इज 0 डिग्री जो सेल्सियस है टेम्परेचर यहाँ पे पाया जाता है थ्रू आउट द ईयर. ओके, so that means the climatic condition is cold. Get it? So hence here the air is cold and as a result high pressure belt get formed. टेम्परेचर ज्यादा है तो एयर प्रेशर कम है, ठीक है, टेम्परेचर कम है तो एयर प्रेशर ज्यादा. समझ में आया? ओके, so as a result high pressure belt get formed in this region and this is called as the polar higher pressure belt. Okay, so they generally occur the area between 80 degree to 90 degree. आप देखेंगे आपको ये 80 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है. इस रीजन में ये एरिया यूजुअली हमको दिखाई देता है. ओके, so that is all about the pressure belts. Now we will discuss, okay, now we will see the effects of air pressure. So let us see
what are the effects of air pressure? Just because of the air pressure, there is an existence of the wind. That means origin of wind takes place just because of the air pressure. आपको पता है, the air in motion is called wind. ठीक है? So wind का जो origin होता है, that is just because of the air pressure. Now second, generation of the storm. ठीक है? Storm आपको पता है, जब wind की speed बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो storm आते हैं. ठीक है? Then convectional type of rain. इक्वेटोरियल रीजन पे ना बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण दोपहर को वहां पे बारिश आती है. फॉर एग्जांपल इक्वेटोरियल रीजन, एक आध एग्जांपल देते हैं, ब्राजील का एग्जांपल लेंगे हम. ठीक है? ये जो रीजन इक्वेटोरियल जोन में आते हैं, ठीक है, वहां पे जो है डेली आफ्टरनून में बारिश होती है. दैट काइंड ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड द कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल. ओके, एंड दिस कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल happens just because of the air pressure. Okay, so air pressure affects the breathing activity too. Breathing का rate भी air pressure के ऊपर depend करता है. Now the next part of this chapter is isobars. Okay, so what is mean by isobar? The line that joins the places of equal pressure on the map is called an isobar. You can see in this image. In this map, ये देखो, आपको जो है लाइंस दिखाई दे रही है. ओके, दैट इज जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर. आप देखो यहाँ पे इक्वल प्रेशर दिखाई दे रहा है. ठीक है, अगर इक्वल टेम्परेचर को ज्वाइन करते हैं, ऐसी लाइन जो इक्वल एक पर्टिकुलर प्लेसेस है और वहां पे इक्वल टेम्परेचर है, टेम्परेचर सेम है, तो अगर इक्वल टेम्परेचर को वो लाइन जो है जोड़ते हैं, ठीक है, हम सेम टेम्परेचर है पर्टिकुलर प्लेसेस पे, तो वो जो लाइन जोड़ेगी, ठीक है, उस लाइंस को हम बोलेंगे आइसोथर्म. अब जो लाइंस इक्वल प्रेशर्स को जोड़ती है, एक पर्टिकुलर इतने सारे प्लेसेस है, वहां पे अगर इक्वल प्रेशर है तो ये लाइन जो इक्वल द एरियाज हैविंग द इक्वल प्रेशर उसको जोड़ती है, देन इट इज कॉल्ड एज द आइसोबार्स. ओके, एंड यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो, इसे आइसोबार्स बोलते हैं. ठीक है, नाउ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट ये जो एयर प्रेशर, जस्ट फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक है, इसको मेजर करना है तो रिचर स्केल है. ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड हम जो रिचर स्केल से मेजर करते हैं, अर्थक्वेक होता है, एक नापना उसका. ठीक है, वैसे ही अगर एयर प्रेशर आपको मेजर करना है तो एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे हम मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बैरोमीटर. यू कैन सी इन दिस डायग्राम. ये बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एयर प्रेशर जो है वो मेजर कर सकते हैं. यू कैन सी, ये बिल्कुल कैसा दिखता है वो देख लो. एमीटर वगैरह देखा है ना आपने, इलेक्ट्रिक करंट जो मेजर करता है, एमीटर वगैरह, उसी टाइप के देखो ये जो है डायग्राम दिखाई देता है आपको. दिस इज कॉल्ड एज द बैरोमीटर. और इसका जो यूनिट है एयर प्रेशर का, दैट इज द मिलीबार्स. एयर प्रेशर जो है मिलीबार्स में काउंट किया जाता है. फॉर एग्जांपल क्लॉथ अगर आपको लेना है तो आप मीटर में लेते हो, सेंटीमीटर में लेते हो. ठीक है, दूध अगर लेना है तो आप लीटर में लेते हो. ठीक है ना, तो वैसे ही अगर आपको ग्रेन्स लेने हैं तो आप केजी में लेते हो, है ना, हाफ केजी, 1 kg लाइक दैट. वैसे ही जो है एयर प्रेशर जो है वो मिलीबार्स में मेजर किया जाता है. ओके, so in this way we have taken the revision of lesson number 4, that is the air pressure. Okay, now we will discuss the question answers, MCQs we will discuss, which are related to the portion we have just taken now. Okay, revision based एक exercise लेंगे. Let us see कि आप आंसर कर पाते हो या नहीं. तो एक छोटी सी समरी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स हम ले लेंगे. ठीक है, सो वन फर्स्ट क्वेश्चन, एट हायर अल्टीट्यूड एयर बिकम्स, ठीक होंगी, थीन होंगी, हॉटर होंगी, मोर ह्यूमिड होंगी. एट हायर अल्टीट्यूड एयर जो होती है वो थीन होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भी हमने देखा एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस
एयर प्रेशर डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड हाई अल्टीट्यूड रीजन पे जाएंगे एयर प्रेशर जो है वो कम कम होते जाएगा। तो आंसर इज थिनर। एट हायर अल्टीट्यूड एयर बिकम्स थिनर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर प्रेशर इज एक्सप्रेस इन। ना अब भी हमने देखा कि एयर प्रेशर हम मिलीबार्स में एक्सप्रेस करते हैं, मिलीमीटर में एक्सप्रेस करते हैं, मिलीलीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं, या फिर मिलीग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं। सो आंसर इज मिलीबार्स। ओके, ऑन द अर्थ एयर प्रेशर इज यूनिफॉर्म होता है क्या, अनइवन होता है, हाई होता है या लो होता है? दैट यू हैव टू आंसर। ओके, सो ऑब्वियसली आपको पता है एयर प्रेशर ये कभी भी इवन नहीं रहता है अर्थ सरफेस पे, तो ऑब्वियसली द आंसर वुड बी अनइवन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिल इन द ब्लैंक प्रेशर बेल्ट स्प्रेड बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ पैरेलल। ये देखो आपको क्लियरली दिख रहा है 5 डिग्री, ये है साउथ साइड, ये है नॉर्थ साइड, बीच में जो है दैट इज द इक्वेटर। अब देख सकते हो, देखो मैंने अगर ये लाइन ड्रॉ की तो ये है क्या है, और ये है साउथ, ये है नॉर्थ। ठीक है, समझ में आया? सो द फिल इन द ब्लैंक प्रेशर बेल्ट स्प्रेड्स बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। यू कैन गिव द आंसर वेरी करेक्टली। आपको दिख ही रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ओके, सो नाउ सी, let us discuss the answer in one line. Okay, so ये थोड़ा थिंक करने वाली जो है वो एक हम बोलेंगे पॉइंट है। ठीक है, what will be the effect on the air pressure if the temperature drops? टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो इसका इफेक्ट जो है एयर प्रेशर पे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो एयर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, सिंपल लॉजिक है। Why does the air pressure rise with a fall in temperature? क्या रीजन है भाई? So reason is what? As the temperature fall, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस। ठीक है, उसकी एयर की जो डेंसिटी, डेंसिटी मींस मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, हर चीज को मास होता है और वॉल्यूम होता है। ठीक है, सो व्हाट इज बाय डेंसिटी? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी है तो उसका मास कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है? ठीक है, तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल डेंसिटी। सो एज द डेंसिटी इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो डेंसिटी इंक्रीज होती है, और अगर डेंसिटी इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली एयर प्रेशर क्या होगा? एयर प्रेशर भी इंक्रीज ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एयर प्रेशर? कौन से फैक्टर जो है एयर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस दैट वन, द अल्टीट्यूड ऑफ अ रीजन, टेम्परेचर ऑफ द एयर and the amount of water vapor in the air are the factors affecting the air pressure. Okay, now next question, what is mean by barometer? The instrument that is used to measure the air pressure is called barometer. What are the effects of air pressure? सब आज ही देखा हमने। What are the effects of air pressure? Air pressure generates winds, it also generates storms, it also leads to convectional type of rain. So these are the effects of air pressure. Okay, so today we have taken the revision of the lesson number 4, as well as we have discussed the MCQs and one line question answers of lesson number 4. Again we will meet with the revision of the next chapter. Till then, goodbye and have a nice day you all.